our last session, which is about the rising stars in Indian retail. This session we are doing essentially to showcase the learnings and the journey of some selected entrepreneurs from the Tri-City region so far, which is a testament to the kind of dedication and unique initiatives they have taken in their respective domain. So to start off with the session, I would like to first call upon the stage Ms. Kirti Goyal, co-founder and head designer at Ethel. Ms. Goyal's design approach influenced by keen observations of the environment. So please come forward and share your journey with us. Hello. Yes, everybody can hear me. Okay, I'm Kirti and we work with Thatheras to make handcrafted brass, copper and bronze utensils and then sell it in the market. Th se Thathera. All of us have heard of them. Let's see what they actually do and who they actually are. ये कोई नाम नहीं है ठठेरों का रियल नाम है पात्रकार। पात्र मैंने बर्तन होता है कि बर्तन बनाने वाले को पात्रकार बोलते हैं। ये हमारा काम ठठेरे ये कोई नाम नहीं है ठठेरों का रियल नाम है पात्रकार। पात्र मैंने बर्तन होता है कि बर्तन बनाने वाले को पात्रकार बोलते हैं। ये हमारा काम है इसलिए आपको ठठेरा बोलते हैं। जैसे कोई लोहार का काम करता है वो लोहार को उसकी गोद नहीं है कोई, वो लोहार का काम करते हैं ताश पर लोहार बोलते हैं। उनका जो काम है बर्तन बनाने का, उनमें से जो आवाज निकलती है थन थन की आवाज निकलती है उससे ठठेरा कहलाता है। ठठेरे की खासियत ये है कि ये कोई भी बर्तन हाथ से बना देते हैं। जो सुनार है वो गहने बनाता है, वो हर प्रकार के गहने बनाता है। इसी तरह से जो पात्रकार है ठठेरा है उसको जौन सा मर्जी बर्तन दे दो वो बना लेगा। मैनू कम करदे मेरी उदों उम्र सी वध तो वध 15 साल की जो मैं काम च पिया पढ़े पुढ़े का है ही नहीं। पहला गुड्डियां गड्डियां डालते रहे मुड़ के कम लगते फिर। हर इंसान डेरा नहीं बनता। जो हम काम करते हैं हमारी औलाद है वो होली जैसे काम करते हैं, सीख देते हैं हमारे पिताजी ऐसे काम करते हैं, वो होली इसमें लैब में बढ़ते हैं। जो घर का है जैसे कोई हम काम करते हैं, मेरे फादर साहब काम करते थे, मैं भी करता हूँ उनके साथ, तो मेरे को सीखने में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर किसी को सिखाना पड़े उसको टाइम लगता है, अगर नए से कोई स्कूल जाएगा तो उसको टाइम लगता है। इस तरह से इसको काम को सिखाने के लिए टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि जो जनरेशन छोड़ गई इस काम को वो दोबारा से आए। बच्चे जो छोड़ गए थे काम को अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इस तरफ रुझान है उनका, आने लगे, काम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। 5-6 साल से कुछ काम काफी बढ़ा है ठठेरों का। So, our business is driven by an intent. It's the only craft form of India to be listed under UNESCO's list of intangible heritage culture, and it's been listed since 2014. I was just out of college in 2017 when I was pitched to this project to go and work on it as a designer. तो पहले तो मार्केट रिसर्च करना था ये बर्तन बिक क्यों नहीं रहे। मुरादाबाद 1.2 बिलियन का ब्रास
एक्सपोर्ट कर रहा था, बट इन ठठेरों के पास काम नहीं था. So you know, to kind of do the market research, I realized that people had switched to steel, aluminium, non-stick utensils for, of course, the ease of utility and maintenance, but left behind a lot of health benefits. So of course the product was coming with the story, so that's what we started telling people. So we started by telling people that, you know, how good these utensils are for your health. Ayurveda states drinking from copper, cooking in brass and eating in kanza are one of the most healthiest habits if you can inculcate it in your daily life. But right kind of information in market was missing. But when we started in 2017, copper had already found its way in the market. And slowly, after a lot of exhibitions, we realized that market was prepared for these metals. And COVID was the time for us. I mean, it was blessing in disguise, because a lot of people started shopping online, because that was the only medium for them to connect to the outer world. And we started telling great stories on where their product is coming from, how can they use it in their houses, and of course the health benefits part of it, because people had suddenly become more health conscious. Now they were not concerned with, gluten-free and millets had already started becoming popular, but brass and copper not so yet. So people started switching to these metals after that, and due to COVID, our business got that momentum, and after that we opened our first retail outlet last year, because we kind of believe in the omni-channel approach, where we feel that people are going to get back to that touch and feel factor of buying. They will want to, you know, feel the product before buying. Though storytelling does great for us, but what we visualize is having at least one brass kadhai in every household. That is our vision. And we are trying to transform these traditional utensils into a very trendy way. I'll show you the glimpse of our store. Okay, these are some of our products that we sell. And this is how our store looks. So it's like completely modern outlook, but like traditional brass utensils. Thank you. And thank you, Genesis, for having me here. And the stories you put up, the presentation on the Instagram is wonderful. Thank you. I've seen the pictures and all the photo shoots. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Is there any question for Kirti, or should we proceed? So how is the store going in Delhi? How are people taking it? It was slow in first 6 months, since it's on the first floor, so it kind of takes time for people to get to know there's something new open. But after 6 months, we started breaking even. That's perfect. Thank you so much, Kirti, for the presentation. So joining me next is a true trailblazer in the range of entrepreneurship in Tri-City, Ms. Himja Rana. She is not just an entrepreneur, but a mentor for a lot of women entrepreneurs across the country. With over 2 decades of corporate expertise, she actually empowers all these boss ladies each and every day. So Ms. Himja, over to you. So I don't have a presentation. Thanks a lot, Prateek, because I was having my events from last 2-3 days. So I was telling him I'm not able to create a video and present something here, and I will take a very short time. We are here to present our brand. So here I am. I'm Himja Rana, and I'm into business since 17 years. So I started off very small with a sewing machine. And then when I took my sabbatical 5 years back, so I was running a full-fledged factory with around 12 to 18 workers. So today I'm here representing Boss Ladies. So Boss Ladies, I started 5 years back. It is a community of women entrepreneurs. And why? So you all can see it today. मैं इस तरह की networking meets में जाती थी क्योंकि मैं चाहती थी to know more about
my city, more brands, what they are doing, how corporate sector is helping them and all. But I can see a very few percentage of girls. आप आज भी देखेंगे तो I can see हमारे panel में it's good कि there are 3 and I know all 3 of them. But the percentage of women sitting in a networking session late hours, क्योंकि networking generally happens when the business closes and it is in dinners or golf courses or over a drink. तो आप जनरली नहीं देखेंगे कि लड़कियां आ रही हैं और अपने बच्चों को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, या फिर अगर अनमैरिड हैं तो अपने मॉम डैड को बोल के कि हम 7-8 बजे जा रहे हैं, किस लिए? नेटवर्किंग करने, किसके लिए? काम के लिए, जो मॉम डैड या घर पे कोई भी नहीं समझेगा. तो दे always used to think कि it is not important. But what I think, when you are doing a business, and very good brands of our city are here today, I'm happy to see that, and they are all here to tell a story of their brand, right? So that means networking is important. So that's why I started Boss Ladies, and with God's grace, starting from 2018 and till today, so we are in now 8 cities. So we have covered 6 cities in Punjab. I covered Jammu. Very recently I covered Kanpur. And giving you a very good news about Boss Ladies as well. Very recently, few days back, so we collaborated with Dell for Startups, and all my members and all Boss Ladies who are with us, they can take all the benefits which Dell are providing to startups in India. So this is one achievement which I think I took this platform to give the news to all my ladies. Secondly, we are launching our Boss Ladies Accelerator. So, जितना मैंने देखा है, tier 2, tier 3 cities I cover. So, girls, they don't know much about incubators, accelerator, how to learn about business. बहुत ही unorganized way में business run करती हैं. तो उनके लिए business study चाहे MBA होंगी, मगर उनका जो तरीका है बिजनेस रन करने का, दैट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. जितना टाइम है उतने में ही करना है, मतलब कि दे आर नॉट पुशिंग देयर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल्स. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड गर्ल्स to learn about business, and that's why we are starting an accelerator program. And from September we are launching accelerator in Chandigarh and going on a road show to cover 13 cities in 5 states of North India, wherein we'll be having on board angel investors and many other good institutes who can teach them, the selected ones. So we can't teach everyone. So we'll be having applications and we'll be teaching few of them, and then we'll be they'll be able to pitch in front of good angel investors. So that's our story. So everyone should follow Boss Ladies India, please. जितने यहाँ men भी हैं, so that they can support us. So that would be great कि अगर आप अपनी knowledge या अपनी support किसी भी तरह से हमारी community को अगर provide कर सकते हैं, so that is all welcome. Thanks a lot. बहुत late हो गया है and I want to wrap it up in a very quick way. Thanks a lot, man. Thank you, Bizen. Thank you for enlightening all of us. Okay, so our next presenter is Ms. Tanvi Bhuthania. She is the founder at Frenesi Fashion and Tavi Jewels with a strong background in marketing and sustainability advocacy. She's been able to enlighten a lot of aspiring entrepreneurs. So welcome, Ms. Bhuthania. Hi everyone, good evening. First of all, it's an immense pleasure to be here in the D2C community talking to, I've been speaking to a few people and like बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब you see people इस space में arena में people are trying to grow traditional retail space से people are trying to make a transition towards the online space. So yeah, it's a great pleasure to be here.
And I'll just introduce myself. My name is Tanvi, and Fredesi was my passion project basically. मैं ये काम पिछले 6 से 7 साल से कर रही हूँ, and I am 26 years old. And this just speaks a bit about my brand. So I started with zero investment. A lot of you had this question here, कम पैसों में कैसे start करें, कैसे बढ़ाएं काम को and all these things. So मैंने zero से start किया था, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं था, right? मेरे लिए this entire project was just something I used to do in college to earn some extra money. But with the growing advent, ये एक इंडस्ट्री बन गई. हम लोग ने इंस्टाग्राम से अपना चैनल चलाना स्टार्ट किया था. We were selling stuff on Instagram, taking orders on WhatsApp, on Instagram. But eventually कोविड के बाद we saw such great influx. आज की डेट में हम पर डे में 1 लाख से 5 लाख की सेल करते हैं. And we are not even on any other omni-channel presence. We are not on Amazon, we are not on Myntra, we are not on Ajio, but हमारा खुद का वेबसाइट एक दिन में 1 लाख से 5 लाख का सेल करता है. And I like now people might have questions कि ये कैसे हो रहा है, zero investment से start किया था and all these things. So all I have to say to people who are trying to get into the online space from the traditional retail spaces, just play on your SEO. Have your category managed, have your content managed, and अपने SEO पे खेलो, you will definitely reach to places. So last few years में we have been reaching out to most of the publication houses to make sure we have nice features. लोगों की नज़र में आना बहुत ज़रूरी है. जो दिखेगा वही बिकेगा. So this whole time we have सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या आता है, जब भी ब्रांड तो बिल्ड हो जाता है. आज के टाइम में ब्रांड बिल्ड करना इज़ नॉट डिफिकल्ट. 2020 से पहले अगर देखेंगे तो ब्रांड बिल्डिंग वाज स्टिल अ टास्क. पीपल वर स्टिल स्टार्टिंग एंड धीरे धीरे nobody knew the basic how do I say कोई टर्म्स नहीं थे, राइट? परफॉर्मेंस मार्केटिंग टर्म नहीं था, SEO टर्म नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग में आजकल डिजिटल मार्केटिंग समंदर बन गया है. बट अर्लियर वी डिड नॉट हैव टर्म्स फॉर इट. बट if now you see, the only way to grow your brands online and in order to have a great presence is to work on your SEO and is to work on your digital marketing. So that's a cover we did for Filmfare. Fredesi not only just provides with clothing and women's wardrobe solutions, but we also do a lot of styling projects, and that's how we are increasing our cart size. So D2C की space में the most important aspect is to increase your cart size. So that's what we are doing. And yeah, I'll just open the floor for questions if somebody has questions. Anything. Yes, please. Are you managing the entire digital marketing yourself in-house, or would you suggest, are you doing it the entire digital marketing in-house, or it's outsourced, or how is it? Okay, so what I suggest is that you outsource this in today's time. But मेरे पास सारा और digital marketing मेरा in-house है, because I myself do a lot of research work. So once the marketing funnels are created, आपको पता है आपका target market audience क्या है, आप किस areas में आपका sale सबसे ज़्यादा better जा रहा है, कौन सा product perform कर रहा है, आपको लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है या फिर आपको अपना कंटेंट सेल करना है. तो उस सिचुएशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है कि आपको अपना प्रोडक्ट सिर्फ लोगों तक दिखाना है, अवेयरनेस आ रहा है. तो अगर आप अभी अवेयरनेस स्टेज में हैं तो आप I would suggest that you can do the digital marketing का process in-house also. But if your objective is to convert sales as much as you want, like जितना ज़्यादा sales कर सकते हो उतना ज़्यादा, तो I would suggest that you should always outsource the digital marketing aspect of it. You're making the products on your own?
Yes, we have our own. We have almost 150 independent designers on board, and we get our manufacturing done in China. Hi. My one question was where you're sourcing the products from, but you clearly answered that one. The Yeah. other one is, having done well online, do you plan to go offline? Yes. Why? Yeah, I feel offline markets are not dead yet. People really need to have a feel, and especially when we talk about Indian consumer, until and unless they don't have the touch and the feel, the trial aspect of it, and also the trust factor. I think that all comes from the offline segment. And if somebody is doing well in the offline sector, transitioning to online is not difficult. But an online to offline transition is way more difficult, because if you see, you'll see a lot of brands performing really well online, but उनके stores खाली होते हैं, right? आप किसी भी बड़े brand को ले लीजिए, it's doing tremendously well online. लेकिन आप उनके stores में जाएंगे, malls में stores हैं उनके, but उनका store खाली पड़ा है. Nobody goes to their store. I personally do this exercise where I go up to the store managers, whoever is managing the store, and we ask them, ki, why have you opened these stores? Like, basically nobody is there. So most of the replies we get is, okay, we had funding coming in, right? But I also feel that it's very important for an online brand to go into an offline space, specifically to maintain that trust factor. And it's very important to be in the eye of a consumer, especially in the tier 1 cities. Yeah. Thank you. Thank you so much. So our final presenter today is Mr. Krishan Kumar, director at Million Cases. Krishan is the prominent online smartphone retailer, smartphone accessory retailer. He's co-founded Pepperly India and partnered with 3 more D2C brands. With more than 10 years experience, he's a digital marketer and a member of the E-Commerce Association of India. So welcome, Krishan. Hi everyone, this is Krishan from Million Cases. This is my first presentation on the stage. So अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, फंबल हो जाए, तो प्लीज़ माफ़ी चाहिए. और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ प्रतीक को. आई डोंट नो हाउ, कैसे, कहाँ से इन्होंने मुझे लिंक्डइन पे ढूंढा और मुझे सीधा प्रेजेंटेशन का ऑफर आया कि भी हम चाहते हैं कि आप स्पीकर बनो. तो आई हैव नो आइडिया कि सर आप कौन हो, कौन सी कंपनी है, क्या है. बट इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और मुझे ऐसा लगा कि जो प्रेजेंटेशन में नेम थे जो सर ने मुझे बताए, वो मुझे लगे कि अगर वो लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट उनको सुनने के लिए जाना चाहिए. अपनी कोई सुने ना सुने, हम उनका सुन के कुछ ना कुछ सीखेंगे. तो मैंने अपना नाम बता दिया. अब मैं सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से. आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे. व्हाट % ऑफ पीपल थिंक अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, जैसे कि पीतल बनाया या फिर जस्ट हर्ब्स बनाया, मिलियन केसेस बनाया, कोई भी ब्रांड, बिजनेस, ब्लॉग, यूट्यूब, कुछ भी ऐसा जो कुछ एक लेवल से ऊपर होता है. एक मैं छोटे सब्जी वाला या बनने की दुकान की बात नहीं कर रहा, उससे थोड़ा ऊपर जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बैठे हैं, सबने कुछ ना कुछ ऐसा किया है. तो कितने % ऑफ पीपल ऐसा कुछ करने के बारे में थिंक करते, सोचते भी हैं? कोई गैसेस? प्लीज मुझे आंसर चाहिए, तभी जो प्रेजेंटेशन इंटरेक्शन हो पाएगा. 25. सर थोड़ा ऊंचा सुनाई नहीं दे रहा. 25%. 25%. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग नंबर. एनीबॉडी एल्स? 5%. 5%. ओके. 99%. 99%. ओके. हर कोई सोचता तो सब लोग हैं. सोचना एक होता है, जैसे भी सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और एक होता है चाहत रखना. जो आप कह रहे हो चाहत होती है. हर कोई चाहता है मैं अमीर बन जाऊं, यार कैसे सर से मैं सैलरी बढ़वा लूं, या कैसे करोड़पति बन जाऊं. वो नहीं, जो सोचते हैं, जो कुछ प्लान करते हैं. आपने प्रेजेंटेशन देख लिया. अच्छा देखो,
बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जस्ट 10% ऑफ पीपल थिंक अबाउट क्रिएटिंग। ऑफ दैट 10% जो सोचते हैं कुछ करने का, उनमें से ओनली 10% एक्चुअली डू इट, एंड ऑफ दैट 10% जो करते हैं, उनमें से ओनली 10% कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन गोइंग। अगर हम मैथ्स करते हैं, आई नो आज के ज़माने में थोड़ा सा मैथ्स का अपना डामाडोल हो गया है मामला, लेकिन मेरा अच्छा है तो मैं करके लाया हूँ और मैं आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर x की वैल्यू 1000 है, 1000 का 10% होगा 100, और 100 का 10%, सॉरी, जो 1000 का 10% 100 होगा, उतने लोग तो सोचते ही, 1000 में से सिर्फ 100 लोग सोचते हैं। उनमें से जो सोचते हैं उनका 10%, मतलब कि 10 लोग एक्चुअल में कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं, जैसे ब्लॉग बना लिया या अपने शॉपिफाई स्टोर पर जस्ट बना लिया क्योंकि फ्री में मिल रहा था 14 दिनों के लिए ट्रायल पे। और उसके बाद 10% जिन्होंने स्टार्ट किया, उनका 10% एक्चुअल में कीप ऑन गोइंग, जो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल से कर रहे हैं। विच मीन्स कि आप, हम लोग 1 आउट ऑफ 1000 है, विच मीन्स 0.1%, एंड दिस इज अ फिनोमिनल नंबर सच में। तो एक बार मैं चाहता हूं कि हम सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो अब ऑब्वियसली ज्ञान की बात हो गई, तो मैं कौन हूं? 11 सालों से इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा हूं। 2 ब्रांड्स ओन करते हैं हम पर्सनली, मिलियन केसेस एंड पीपरली इंडिया। स्मार्टफोन एक्सेसरीज का प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट के प्रोडक्ट है, ब्रांड है, और हम इसमें इंडस्ट्री लीडर्स हैं। इसके अलावा हम अदर ब्रांड्स के साथ में भी पार्टनर करते हैं, उनको ग्रो करने में, हेल्प करने में, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। हम डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को और लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस वजह से हम कई कंपनीज हम देखते हैं जो बहुत छोटा रेवेन्यू कर रही हैं, या फिर उनमें पोटेंशियल तो है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो कुछ उस लेवल कर नहीं रहे, तो हम उनसे रीच आउट करते हैं, या जैसे अभी गैदरिंग में कोई मिलता है तो मे बी उस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं। और इस तरीके से हमारे 3 पार्टनर ब्रांड्स हैं, और उनमें से OMGS इंडिया, पीपरली हमारा ही ब्रांड है, बूट्स एंड बियॉन्ड, ऑल बूटस्ट्रैप एंड ऑल प्रॉफिटेबल। नाउ कम्स द बिगेस्ट एलिफेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, collectively doing 1 million plus बैंक रेवेन्यू। दिस इज नॉट शॉपिफाई रेवेन्यू या वूकॉमर्स का रेवेन्यू, वो नंबर नहीं, हम उसको देखते भी नहीं है। हम कभी उस चीज़ की परवाह नहीं करते कितने के ऑर्डर्स आए, बैंक में कितना आता है आफ्टर डिलीवरी, वही मैटर करता है। तो अगर हम स्टार्टअप्स की लैंग्वेज में बात करें तो एक टर्म होती है ARR, एनुअल रेवेन्यू रन रेट करके। तो उसके हिसाब से वी आर डूइंग 100 करोड़ प्लस ARR, जो कि बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनीज का भी नहीं होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, और इस चीज़ से आपको समझ आएगा कि क्यों मुझे मेरी बात को सुनना चाहिए आपको ध्यान से। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट होती है 2012 में। कॉलेज में बीटेक कर रहे थे, यहीं पर पीछे खरड़ में कॉलेज था PTU का, क्योंकि पैक में IIT में एडमिशन लेने लायक थे नहीं हम। तो कॉलेज में ऐसे ही रैंडम फुटबॉल खेलते टाइम ग्राउंड पे कहीं से ब्लॉगिंग टर्म सुना, इतना पता चला बस कि भाई आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हो। तो IT कर रहे थे बीटेक में, और खुराफाती दिमाग बहुत था, हमेशा से क्यूरियोसिटी बहुत थी, तो जानने की कोशिश करी क्या है, और जस्ट स्टार्ट कर लिया। तो ये बात है Feb 2012 की। उसके बाद में 2-3 महीने सीखने सिखाने में, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वो सब चीज़ें की। और आई थिंक 4 या 5 महीने बाद पहला चेक आया गूगल से। उस टाइम पे गूगल से चेक आता, अगर किसी ने ब्लॉगिंग की होगी तो दे वुड नो। तो एट द एंड ऑफ 2012 आई वॉज मेकिंग अराउंड 3 लाख to 4 लाख रुपीज पर मंथ, जो कि आई कैन गारंटी कि मेरे कॉलेज में मैक्सिमम टीचर्स भी नहीं कमा रहे हैं। नहीं, लिटरली मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट मार्केटिंग का पावर क्या है। मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर उस चीज़ को एंजॉय करने लग जाओ। मेरे घर पे एक कंडीशन थी कि भैया आपको कॉलेज तो जाना है, कुछ भी आप और करो वो ठीक है, लेकिन कॉलेज जाना जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बाद कॉलेज से आने के बाद खरड़ से कॉलेज था, और मैं रहता नया गाँव में PGI के पास में, तो 1-1.5 घंटा आने में लग जाता था। 6 बजे घर पहुँचते थे, और 6 बजे जो बैग टंगा हुआ ही रहता था, और कंप्यूटर पे जो बैठते तो 3 कब बजाते थे पता नहीं चलता था। और 3 बजे सोना एवरीडे, और सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठ के फिर कॉलेज जाना, और एवरीडे का रूटीन। ऐसा 2 साल होता रहा। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर में अपनी कंपनी
अपना ऑफिस और 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। मैं फुल टाइम कॉलेज कर रहा था और ये सब चीज़ें चल रही थी साथ के साथ। बट एक जैसा होता है कि जब कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही होती है तो कुछ ना कुछ घटना घटनी है। तो गूगल के सर्च एल्गोरिदम्स की अपडेट्स आती रहती है रेगुलर बेसिस पे, तो उसको कोर एल्गो अपडेट करते हैं। आपने सुना होगा पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, ऐसे करके। तो जिस स्ट्रैटेजी से हम ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे थे वो गूगल ने पकड़ लिया। वो क्या करते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी, आज जो एसईओ मैम ने बोला कि एसईओ आप करो, एसईओ की जो हम चीज़ें हम बिल्कुल ब्लैक हैट एसईओ कर देते, कीवर्ड स्टफिंग दबा के कीवर्ड स्टफिंग करते, गूगल ने उसको पेनलाइज कर दिया कि भाई कीवर्ड स्टफिंग वाले सारे ब्लॉग्स डाउन। तो जहां पर हम 4-4, 5-5 लाख प्रॉफिट मंथली कर रहे थे आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, हार्डली 50,000 भी कमाना मुश्किल हो गया। ऑफिस का जो खर्चा था, रेंट एंड सैलरी वगैरह, वो सब निकालने की हमने बहुत कोशिश करी। 2-3 महीने ट्राई किया। मैंने और मेरे पार्टनर सब बैठे वहाँ पे, रोहित सिंह, तो हम लोग रोजाना ऑफिस जाते थे, सोचते थे क्या करें, कैसे ब्लॉग बनाएं ताकि रैंक करे। बट कहते हैं ना कि आपको जो आता है आपको वही आता है। तो हमने और बहुत सारी कोशिश करी बट नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पर जब हमने कभी ले ऑफ वर्ड सुना भी नहीं था, उस टाइम पर हमने अपनी पूरी कंपनी, जो 10 एम्प्लॉयज थे हमारे पास ऑफिस में, 10 के 10 एम्प्लॉयज को हमें फायर करना पड़ा, ले ऑफ करना पड़ा। और हम लोग लिटरली ऑफिस में बैठ के रो रहे थे उस दिन कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अब जब हम न्यूज़ सुनते हैं कि भाई जैसे अब आजकल रिसेंटली हम बहुत सुन रहे हैं, बायजूस ने अपना इतना % स्टाफ फायर कर दिया या 10%, 100 लोगों को ऐसा, तो हम उसको देख के ना बड़ी एकदम से वही सिचुएशन याद आती है कि वो मतलब कोई भी अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो उसके पीछे क्या बंदे का जो है, जो भी बिजनेस ओनर है, उनकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो फास्ट फॉरवर्ड ये सब बात है जून की, जो मैं गूगल वाली बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जितने भी लोग थे, हम जितना सर्कल होता है, वो सभी लोग आपस में बैठते थे कि भाई अब क्या करें यार, अब तो बहुत बुरी, क्योंकि कॉलेज खत्म हो चुका था, हमने कॉलेज के बाद बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी जॉब वगैरह करने की। तो लेकिन अब ये सब हो गया, तो फ्रेंड्स मिलते थे, कहते क्या करें। तो ऐसी बातों बातों में पता चला कि एक दोस्त ने बोला कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो ईबे पे कुछ फोन्स वगैरह के कवर वगैरह बेचता है और वो ठीक ठाक कर रहा है। तो अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, अपने पास कुछ नहीं था, 3 महीने से फ्री ऑफिस में बैठे थे, टाइम पे ऑफिस आते थे और टाइम पे घर जाते थे, क्योंकि घर वालों को पता ना चले कि ये सिचुएशन चल रही है, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अब सब जानते हैं। तो फिर एनी हाउ वहाँ से हमें ई कॉमर्स वर्ड का पता चला कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। फिर हमने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया, शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस, जो भी आप जानते हैं, यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत रिसर्च करते करते सीखा, समझा और करा। उसी टाइम पर एक पर्सन थे, है मतलब अभी भी, निक पिरोनी, उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया था ई-कॉम एम्पायर्स करके। वहाँ पे वो जो भी खुद करता था बंदा, वो वहाँ पे वीडियो शेयर करते थे और वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। तो हम हर एक चीज़ को उसको एनालाइज करना, देखना और वो चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते थे। तो 2-3 महीने हमने ऐसा ड्रॉप शिपिंग करते रहे, बट उसमें सेल ऐसी आती, कभी दिन के 5 आ गई, कभी 10 आ गई, 7 आ गए, इस तरीके से। और एड्स बहुत महंगी थी यूएस में, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग यूएस में करे तो बहुत महंगा था। तो ऐसे एक बार रैंडम बैठे बैठे हम लोग रात के 9-10 बजे आपके आसपास ऑफिस में बैठे होंगे, तो आइडिया है कि यार एक बार इंडिया में ट्राई करके देखते हैं। इंडिया में भी कुछ ना कुछ तो लोग आईफोन लेते ही होंगे, हमें पता है कि इंडिया में उतनी ऑडियंस नहीं होगी, बट कुछ तो लोग लेते होंगे। इस तरीके से हमने जस्ट रैंडम, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, तो आप बहुत दिमाग चलाते हो, तो हमने वो चीज़ करी और फर्स्ट डे ही हमारे 2.5 लाख की सेल आई। तो वो हमारे लिए एक टर्नओवर था पूरे बिजनेस के लिए। इमीडिएटली हमने मिलियन केसेस स्टार्ट किया, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में भी हम मेनली फ़ोन केसेस को ही सेल करने की ट्राई कर रहे थे। तो हमने देखा कि इंडिया में आईफोन यूजर्स तो बहुत सारे हैं, बट कोई भी ब्रांड नहीं है जो एस्टेब्लिश ब्रांड हो, जिसके बारे में लोग जानते हो। और ऑफलाइन स्टोर्स हैं, जैसे आप एलांटे मॉल में जाओगे तो वहाँ पे कुछ स्टोर्स है, करंट्स वगैरह और उस तरह की चीज़ें, लेकिन वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और उनके पास ऑप्शन भी सिर्फ 2-4, एक कोई ट्रांसपेरेंट केस रख लिया, एक फरारी का केस रख लिया, 1-2 बस ऐसे ही होते थे। तो हमने ये समझा करते करते, क्योंकि जब कहते कि आप मुसीबत में होते हो तो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, तो हमें ये समझ में आया कि दूसरे ब्रांड्स कैसे करते हैं, जैसे ज़ारा कैसे अपना बिजनेस करता है या फिर शीइन कैसे अपना बिजनेस करता है। तो उससे पता चला कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक फैशन की चीज़ है। फ़ोन पे लोग अपने फ़ोन पे केस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए कम और फैशन के लिए ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी हमारी जो AOV आज भी 1200 रुपीज़ है, तो 1200 का फ़ोन केस कोई प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम लोग, लेकिन फैशन के लिए ज़्यादा लगाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोटेक्शन के लिए लगाता, लेकिन ज़्यादातर लोग फैशन के लिए लगाते थे। तो हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया।
फिर हमने ये देखा, क्योंकि फास्ट फैशन से सीधा समझ में आता है कि लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, तो जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी। तो हमने उस तरीके से बहुत सारी टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी, और हम पहले दिल्ली से करोड़ बाग में मार्केट थी तो वहाँ से सामान लेते थे, बट उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती थी। जो भी चीज़ हमारी अच्छी सेल होती थी उनके पास कभी दोबारा मिलती नहीं थी, क्योंकि वो लोग एक बार लॉट मंगाते थे और ख़त्म। तो हमें चाइना सोर्सिंग को एक्सप्लोर करना पड़ा, कैसे होगा क्या होगा वैसी चीज़ें, और हम उसमें दिन रात लगे रहते थे। और उसके बाद हमारा इम्पैक्ट क्या हुआ, हम जिस ब्रांड को देखते थे कि अरे हमें ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा एक ब्रांड था रोबोबुल करके, आप लोगों ने किसी ने तो देखा होगा रोबोबुल, और एक ब्रांड था स्क्रीन गार्ड्स इंडिया फ्रॉम दिल्ली। ये दो ब्रांड थे जिनको हम, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे, इनकी हंड्रेड्स ऑफ एड्स चलती थी और बहुत ऑर्डर्स करते थे, तो हमने सोचा कि भाई हमारा टारगेट होता था कि भाई इसके जैसा कुछ करना है। लेकिन आज वो बिजनेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इतना टफ था कि उनको एग्जिट लेना पड़ा। वो आज पूरी तरीके से बिजनेस से बाहर है। और अभी मुझे प्रतीक सर भी बता रहे थे कि वो इनके क्लाइंट थे और ये कितना मुश्किल है ये बिजनेस करना। तो आज हम वो सब बाधाएं पार करके इंडस्ट्री लीडर है प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सेसरीज निश में। अबाउट 50% हमारा ईयर एंड ईयर ग्रोथ जो है हम एवरी ईयर कर रहे हैं। और कस्टमर्स, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, मे बी आपने हमारा नाम नहीं सुना होगा, किसी ने सुना होगा, तो जो कस्टमर्स हैं वो हमें क्वालिटी और वैरायटी के लिए जानते हैं। आज भी कोई भी आप फोन यूज कर रहे हो प्रीमियम सेगमेंट, वी डील ओनली ऑन सैमसंग, वन प्लस एंड एप्पल। उसके अलावा बाकी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें चीज़ें पता चली कि नहीं वो सिर्फ सेल दे रही है, उसमें कुछ फायदा नहीं। तो आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो, आप जाके देखना मिलियन केसेस या वुमेन्स के लिए पीपरली इज डिवोटेड टू वुमेन्स ओनली, क्योंकि वुमेन्स को अपना एक लुक एंड फील और वो सब चीज़ चाहिए। तो हमने एक डिवोटेड ब्रांड बना दिया उनके लिए, और वो बहुत अच्छा कर रहा है आज के दिन में। चैलेंजेस क्या है हमारे बिजनेस में? सबसे बड़ा चैलेंज था एसक्यू हैवी बिजनेस। टफेस्ट अगर ई कॉमर्स बिजनेस कुछ हो सकता है तो आपके पास बहुत सारे एसक्यूज होना। आप लोगों ने अगर शार्क टैंक देखा होगा तो जैसे ही कोई बिजनेस बोलता था ना कि हमारे बिजनेस में 20 एसक्यू हैं, तो उनके भाई हाथ खड़े हो, ना 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 भाई तुम्हारे बहुत हैं, या तो एसक्यू कम करो या फिर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आप यकीन मानो हमारे बिजनेस में हजारों एसक्यू। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काइंड ऑफ बिजनेस था। अब आपके पास जब बहुत एसक्यूज होते हैं तो आप हर चीज़ को लास्ट पीस तक नहीं बेच सकते, ये इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हमेशा हमारे पास जो भी हम स्टॉक खरीदते थे उसमें से 15% 20% स्टॉक हमेशा रह जाता था जो नहीं बिकता था, क्योंकि कोई कलर ऐसा था जो मे बी अच्छा सेल नहीं हो रहा, कोई मॉडल अच्छा था ऐसा था कि जो सेल नहीं हो रहा था। तो ऑल प्रॉफिट जो थे हमारे डेट वाज लाइंग इन अनसोल्ड गुड्स ऑलमोस्ट ऑलवेज, हर टाइम, मतलब लगभग हमेशा ऐसे होता था कि हम जो प्रॉफिट बनाते थे वो हमारे गुड्स में ही रह जाते थे। और एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास 5 करोड़ से ज़्यादा का अनसोल्ड गुड्स पड़े थे और जिसको हम कुछ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद में जो सबसे जितने भी लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो लगभग हर पर्सन फेस करते होंगे, या तो हम ओवर स्टॉक हो जाते हैं, हमारे पास कोई सामान है जो सेल नहीं हो रहा, या फिर हम ओवर स्टॉक हो जाते हैं, स्टॉक आउट हो जाते हैं कि जो चीज़ अपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है भाई वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और जब आप चाइना से सोर्सिंग कर रहे हो तो भाई आपके तो और भी मुसीबत है, क्योंकि वहाँ से जितनी मर्जी फास्ट आप शिपिंग करवा लो 10 दिन से पहले सामान नहीं आना। अगर आज आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहाँ पे चाइना में हर चीज़ लगभग मेड टू ऑर्डर होता है, 3-4 दिन मिनिमम वो लेंगे। और उसके बाद में फिर आपको सोर्सिंग में जो टाइम लगेगा तो 10 दिन मिनिमम होते हैं। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आया तो चलाई, ये प्रॉब्लम होती थी हमारे साथ। और ये आई एम श्योर जो भी लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं वो जानते होंगे, इसको फील करते होंगे। उससे भी बड़ी समस्या क्या होती थी, जो मैं एक बहुत भयानक दृश्य दिखा रहा हूँ लोगों को, फेसबुक एड अकाउंट्स की प्रॉब्लम। इस चीज ने, कहते हैं ना कि अगर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स बिजनेसेस को तबाह किए हैं तो इस चीज ने किया। लिटरली वी हैड फ्रेंड्स जो 2-3 करोड़ की सेल मंथली कर रहे थे और वो आज टोटली खत्म हो गए, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को कैटर नहीं कर पाए। अब सॉल्यूशन पे हमें क्या चाहिए था, जो ये तो हमारी प्रॉब्लम्स थी, तो हमें पिन पॉइंट स्टॉक इन्फो चाहिए था, जिससे हमें पता रहे कि कौन सी चीज़ हमारे पास कितना है, ताकि हम उसके हिसाब से वर्किंग कर सकें। टाइमली वर्किंग ऑन स्लो मूविंग गुड्स। जो चीज़ें हम क्या करते थे कि जो चीज़ नहीं बिक रही है उसको छोड़ के जो चीज़ बिक रही है उसको करने जाते थे। इसी वजह से गुड्स जो होते हैं वो हमेशा फंसे रह जाते थे। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई जो चीज़ स्लो हो रहा है उसको स्लो के टाइम पे ही बेच दो, इसकी बजाय कि उसको मरने दो पूरा। सेम जो चीज़ बहुत अच्छी सेल हो रही है उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लो,
ताकि हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर सकें और उसमें, क्योंकि वही चीज़ आपको प्रॉफिट देने वाली है और कोई भी चीज़ नहीं। और टीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ई कॉमर्स बिजनेस में, अगर आपको स्केल पे बिजनेस करना है, अगर किसी के 100-50 ऑर्डर हैं तो ठीक है, वो पर्सनली और 1-2 फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप 1000, 2000, 3000 ऑर्डर करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली टीम की जरूरत पड़ेगी। जो लोग मैं बता रहा हूँ कि जो 2-3 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे और उसके बावजूद ई कॉमर्स से वो बाहर हो गए, वो इसलिए क्योंकि फेसबुक वाली जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल नहीं कर पाए। हम कर पाए क्योंकि हमारे पास टीम थी। हमारे पास 10 लोग ऐसे थे जो एड चला रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, और जितने मर्जी फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो रहे थे, वो किसी ना किसी तरीके से मम्मी का, पापा, चाचा, ताऊ, किसी ना किसी का जुगाड़ करके एड चला रहे थे और एवरीडे सेल आ रही थी। तो टीम बिल्डिंग स्केल पर बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई कि पिन पॉइंट स्टॉक इन्फो, कोई चीज स्लो मूव हो रही है, कोई चीज बहुत फास्ट बिक रही है, तो उस चीज को करने में हमें टेक ने हेल्प किया। हमने टेक कंपनी के साथ में, अपने फ्रेंड की कंपनी थी उनके साथ में पार्टनरशिप की, इन हाउस टेक बिल्ड किए। तो इसके हेल्प से हमने टूल्स, सिस्टम्स, प्रोसेसेस बिल्ड किए जिसने हमारी चीज को स्पीड दी और एफिशिएंसी दी। तो हुआ क्या कि जो हमारे 15 से 20% के आसपास स्टॉक रह जाता था, वो आज 4 से 6% के आसपास में रहता है। और उसमें हमारा टारगेट है कि हम 1% तक जाए। हमारा जो स्टॉक नहीं बिक रहा है वो लेस देन 1% होना चाहिए और वो चीज प्रोग्रेस में। और ये अगर हम इंप्रूवमेंट देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो दिस इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। 300% प्लस के इंप्रूवमेंट है, जो कि एक फिनोमिनल नंबर है। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, जो सामान पहले नहीं बिक रहा था तो हम अब उसको किसी ना किसी तरीके से बेच देते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी है। और हम अभी तक 3 मिलियन प्लस कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स है, मतलब 30 लाख कस्टमर्स, विच इज अ बिग नंबर। अब ये सब करते हुए ऑब्वियसली बात है, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं एवरीडे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ई कॉमर्स में। टाइम ज्यादा हो गया क्या? 5 मिनट में निपटाते हैं इसको। तो 2 लर्निंग्स है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज अगर आप लोग ये चीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़े बनने वाले हैं। फाइंड द विनर्स फास्ट, लूजर्स इवन फास्टर। डोंट सेल एवरीथिंग दैट सेल्स। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो भी चीजें बिक रही है ना, अपने को सेल दिखता, भाई मेरे 500 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, तो बेचते रहते हैं अंधाधुंध। आप ये नहीं देखते हो कि पहली बात तो हर प्रोडक्ट आपको इक्वल प्रॉफिट नहीं देता, और ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट भी देता हो। यहाँ पर होता ये है कि 80-20 रेशो का प्रिंसिपल फॉलो होता है। आपका मोर देन 80% जो प्रॉफिट है ई कॉमर्स बिजनेस का, रेवेन्यू की बात छोड़ दो, प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 80%, मोर देन 80% प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम ओनली 20% ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और अगर आप नहीं यकीन करते हो तो आप जाके एक बार अपने डाटा को चेक करना और आप पाओगे कि यही है। अगले जो 10-20% प्रोडक्ट होंगे वो आपको बेयरली ब्रेक इवन के आसपास या थोड़ा बहुत 50-100 रुपए का प्रॉफिट दे रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं, और बाकी प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन या फिर लॉस में दे रहे होंगे। लेकिन हम लोग करते हैं क्या कि हम देखते हैं भाई मेरे इतने ऑर्डर हैं, इतना प्रॉफिट है, अब उस ऑर्डर को मैं 2 गुना कर दूंगा, प्रॉफिट भी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लो, लूजर्स को कट डाउन कर दो, और जो आपके विनर्स हैं उन पे अगर आप डबल डाउन कर दोगे, तो आप उतने ही ऑर्डर, इवन उससे कम ऑर्डर करते हुए भी उससे ज्यादा प्रॉफिट कर लो। तो दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग जो हमें लास्ट ईयर समझ में आई, और 7 साल से कॉमर्स करते हुए लास्ट ईयर समझ में आई, और लास्ट ईयर से अभी में हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क है। सेकेंड लर्निंग जो बहुत जरूरी है, ब्लिट्ज स्केलिंग। मनी इज इन द स्केल, डबल डाउन। वंस यू हैव द राइट स्ट्रेटजी, या कहते हैं मार्केट फिट जो हम कहते हैं, देन इट्स वॉल्यूम। अगर आपको अपना प्रोडक्ट मिल गया है, अगर आपको अपना फेसबुक क्रिएटिव मिल गया है, गूगल जो भी आप चीज करते हो, इन्फ्लुएंसर करते हो, एसईओ करते हो, एनीथिंग, अगर आपको कोड पता चल गया जो आपको एवरी मंथ में मे बी 2000, 5000, 10000 ऑर्डर दे रहा है और प्रॉफिट भी दे रहा है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डबल डाउन करना। जितनी तेज गाड़ी चला सकते हो यहाँ पर वो चलाने वाले जरूरत। तो इसके लिए एक बुक है सेम नाम से, ब्लिट्ज स्केलिंग, बाय द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। तो ये बुक आप, मैं ये मानता हूँ कि हर बिजनेस ओनर के लिए, खास करके ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स के लिए, ये बुक अगर एक गीता या अगर एक बाइबल हो सकती है तो दिस इज द वन। Everybody must read it. Reid Hoffman is the person, उनका नाम रीड हॉफमैन है, and is the founder of LinkedIn. Don't ignore retention. ये एक बोनस पॉइंट है लिटरली। हम लोग सेल तो करते हैं 10,000, 5,000 ऑर्डर, 15, 20, 50,000 ऑर्डर करते हैं मंथली, बट रिटेंशन पे ध्यान नहीं देते। और ये सबसे बड़ी गलती है। जो कस्टमर आपसे शॉपिंग कर चुका है और अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट में दम है,
तो आपको रिटेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको पता भैया प्रोडक्ट में दम नहीं है, एक बार बेच के खत्म, पैसा निकाल लिया, बात खत्म, आप नया बंदा ढूंढो, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो लिटरली यू हैव टू वर्क ऑन रिटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स। और लगभग हर ई कॉमर्स बिजनेस ओनर ये गलती करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कम है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है गेम ऑफ सेलिंग, उस पर हम इस तरह के टिप्स मैं शेयर करता रहता हूँ एवरी वंस इन अ वाइल। तो मे बी यू कैन चेक और वहाँ पे कुछ आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले। एक ये थॉट मैं आप सबको लिए भी और अपने लिए भी बताना रिमाइंड करना चाहता हूँ, एक्ट ऑन एडवाइसेस यू गिव टू अदर्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोचो कोई भी मैडम, कोई भी सर है, आपके पास कोई बंदा आता है, बोलो भाई यार मेरे ना यार बिजनेस में सेल नहीं आ रही है या फिर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा, आप उसको क्या सजेशन दोगे? डेफिनेटली आप उसको ना बहुत काम की चीजें बताओगे, भाई अगर ये नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रहा, गूगल ट्राई कर ले, कोई दूसरा बंदा रख ले, कोई एजेंसी हायर कर ले, फलाना ढिमकाना 100 चीजें। तो वही चीज हमने खुद भी अपने लिए करनी है और हम ये भूल जाते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल दूं तो रिलेशनशिप वाला जब मामला होता है, किसी का ब्रेकअप होता है, कैसे समझाते हैं ना उसको, अरे यार छोड़ना यार, तू जाने देना यार उसको यार, मिलेंगी। और लेकिन जब खुद होता है तो ना, फिर भाई हथियार डाल दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम है लेकिन देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ ना। तो प्रेजेंटेशन हो गया। अब एक नेक्स्ट चीज कि जब हमने ये सब चीजें देखी, आइडेंटिफाई करी, तो हमने अपने टेक बिल्ड किए, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। तो वही करते करते हमने इतनी सारी चीजें बना दी, मोर देन 1 करोड़ वी हैव स्पेंड इन बिल्डिंग टूल्स। तो हमें ऐसा लगा कि यार ये चीजें तो ऐसी है जो दूसरे लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर वेयर हाउसिंग, फुलफिलमेंट एंड एग्रीगेशन कंपनी बना रहे हैं। उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लिटरली ओनली हम देने वाले और कोई नहीं दे रहा और ना ही आगे दे सकता। कारण ये है कि दिस इज द थिंग दैट इज फॉर ई कॉमर्स पीपल बाय ई कॉमर्स पीपल। एक होता है बिजनेस माइंड, उसको अपना वैल्यूएशन चेज करना है। शिप रॉकेट को अपना 1 बिलियन बन गया, अभी अब उसको मेंटेन करना है। भाई शिप 1 बिलियन से नीचे गया तो सबको जवाब देना पड़ेगा। अपने को ऐसा नहीं करना। अपने को ये करना है कि जो चीज अपने लिए काम करे, कौन सा कुरियर कौन सी जगह पे अच्छा काम करता है। हम देखते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की ना डिलीवरी परसेंट 60% आ रही है, प्रॉफिट नहीं है, कट डाउन कर दो। मैं कहता हूँ अगर कि आप ये देखो, इंडिया में 37 स्टेट और यूटी मिला के 37 है स्टेट्स एंड यूटीज। तो मे भी ऐसा हो सकता है कोई स्टेट ऐसा हो जो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा हो, मे भी ऐसा हो सकता है कोई सिटी ऐसा हो जो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा हो। आप उस प्रोडक्ट को कट डाउन, अगर आप ऐसे ही सब प्रोडक्ट को कट डाउन करते रहोगे तो कल को आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा और आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो जब हम डाटा पुल करते हैं कि एक चीज की डिलीवरी अगर 60 आ रही है ना, तो आप देखोगे कि कोई ऐसी जगह होगी जहां पे उसकी डिलीवरी 80 भी आ रही होगी और कोई ऐसी जगह होगी जहां पे उसकी डिलीवरी 40-45 भी आ रही होगी। तो हमें आइडेंटिफाई करना। कहते हैं सक्सेस इज अ नंबर्स गेम। अगर आपको नंबर्स की समझ नहीं है ना, तो बड़ी मुसीबत की बात है। या तो सीखो, और नहीं सीख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, तो हायर समवन, जो पर्सन आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है, चाहे वो कोई टूल हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। सर की प्रेजेंटेशन, मुझे लगा था कि आज मैं झंडे गाड़ूंगा, मेरा नंबर 1 होने वाला है, बट सर ने ले लिया पहले नंबर 1 का डाटा। लिटरली आई वाज अमेज्ड टू सी दैट। सर मुझे वो प्रेजेंटेशन चाहिए होगा आपका। बिल्कुल दूंगा। इनफैक्ट यू नो यू आर द वन जो मेरे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। हाँ सर, आपने जो I was talking about, you are actually implementing it. So you have attained that level that now you are visualizing a bigger picture. Thank you sir. जैसा सर ने बोला कि ऑब्वियसली हम जब ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं तो हम फ्री हो ही नहीं सकते डीप वर्क करने के लिए। सब कुछ छोड़ के भाई 4 घंटे में सिर्फ स्ट्रेटजी बिल्ड करूंगा, वी कैन नॉट डू इट। हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, यार वो ऐड नहीं चली थी, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो सर ने बताया ना कि आप बात करते करते ना कुछ आप ही ऐसा कुछ बोल देते हो जो आप बाद में बहुत ही खुराफाती चीज होती है। या फिर आप कोई सीरीज देख रहे हो, कुछ भी कोई मूवी देख रहे हो। अभी मैं रिसेंटली सूट्स देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। तो उसमें एक डायलॉग आया था कि विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस जस्ट बिकॉज द अदर पार्टी इज प्लेइंग गेम्स। तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। सेम जो सर ने बताया कि मेरे पास नोशन में ऐसे ढेरों वो पड़े हैं, जो मैंने आपको जितने भी कोट्स यहाँ पे मारे मस्त मस्त से, वो सब वहीं से निकाल के हैं, जो कहीं ना कहीं फिल्म में या कहीं सीरीज में देखा था। तो आई एम एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दोस थिंग्स। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे मेरा प्रेजेंटेशन। मैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हूँ, गेम ऑफ सेलिंग, लिंक्डइन और ईमेल। ये मेरे कुछ ब्रांड्स हैं, मिलियन केसेस, पीपरली, OMGS इंडिया। OMGS इंडिया हमारे पार्टनर ब्रांड है जो लास्ट ईयर जैन में 35 लाख रुपीस का रेवेन्यू कर रहा था मंथली। हमने इनके साथ पार्टनरशिप की, हमने कुछ अपनी स्ट्रेटजीज लगाई
कुछ अपने ट्रिक्स एंड कह लो कि नॉलेज का यूज किया, एंड टुडे दिस बिजनेस इज डूइंग 4 करोड़ रुपीज पर मंथ रेवेन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच कृष्ण, और आई होप आप सबको जवाब मिल गया होगा कि मैंने कृष्ण को क्यों बुलाया था। एंड कृष्ण, आई वुड लाइक टू टेल यू आई स्पेंट ओनली 1 minute ऑन योर प्रोफाइल, ओनली 1 minute। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐसे काम नहीं किया कि कोई जैसे किसी को अट्रैक्ट कर दे, लेकिन अब मैं करूँगा। सच में, क्योंकि देखो इतने लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, कल को हो सकता है कि हम कोई और यहाँ से भी पार्टनर्स मिले, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार टाइम निकालो तो फेस 8B मोहाली आओ, ऑफिस है अपना, बैठ के चिल मारेंगे, खाएंगे, हमारे सामने तो पाव भाजी बहुत सारी चीज़ वो खिलाऊंगा और बिजनेस की बात करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्प होगा, चाहे पार्टनर होगा, बोले बात। थैंक यू। आई एम श्योर। क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो फील फ्री, भाईचारा वाली बात है, टेंशन नहीं। हाँ जी, कोई भी पर्सन। हाँ, थकी और भूख लगी होगी लग तो मुझे, और सच में मैं बता रहा हूँ, पता नहीं, मैं वैसे बहुत, आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि बहुत बोलने वाला इंसान हूँ। हमेशा स्कूल से ही मैडम लोग बोलते थे कि भाई पढ़ने में बहुत अच्छा, बोलता बहुत है, तो वो एक बीमारी है, बट आई थिंक कि वो अभी अब अच्छे के लिए यूज हो रही है, क्योंकि स्टेज पे बुला लिया उस चीज़ ने। तो मे बी हम जल्दी मिलेंगे जेनेसिस का इवेंट में, या फिर कोई और D2C वगैरह वाले इवेंट होते रहते हैं। मैंने ईमेल अपनी शेयर कर दी है, तो अगर आप कोई भी चाहे तो वी कैन रीच एंड टॉक अबाउट द बिजनेस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच कृष्ण, मतलब प्रेजेंटेशन से ज़्यादा आई थिंक मज़ा आया सबको, सो आई थिंक विल थैंक यू फॉर दैट। सो our last guest for the evening is Mr. Inder Thakrar. Mr. Inder is the founder at the new fashion brand of Tri-City called the Urban Taker, and it's a unique brand which mixes authentic and old, culture of Punjab into the modern apparel products. And this brand products have been adorned by several music industry and Punjabi celebrities. So I'm sure you must be knowing about him. So Inderji, over to you. यूनिक ब्रांड, यूनिक लाइक मी। आई होप के ये मेरे टेढ़े मेढ़े कॉलर से किसी को ओसीडी तो नहीं हो रही। यहाँ पे पीपल कम, दे कीप करेक्टिंग माय कॉलर एंड आई कीप डूइंग दिस अगेन, सो आई होप देयर इज नो ओसीडी गोइंग ऑन। एंड मैंने सोचा था मैं लेट हूँ, आई थॉट सो एक्चुअली, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये इवेंट भी मेरी तरह लेट ही है। माय वाइफ वाज टेलिंग मी यस्टरडे वी वर गोइंग फॉर एन इवेंट, she said you're always a late comer. I said okay, I take it as a compliment if it is coming from my wife. Anyways, the idea is like I wish I could also outsource this speech. I would have requested Krishan. I'm not good at this, so I'll try to make it more interactive so that you can ask me questions and probably I can answer them, because speaking so well is not my cup of tea. Krishan बोल रहा था मैं fumble ना कर जाऊँ कहीं पे, and I'm the one who's come with a lot of confidence here, but I'm sure I'm going to fumble a lot. Anyways, I don't know. I'll tell you about my brand. Urban Taker, we are a Punjab-themed brand. I don't know how many people are aware. Kirti was in touch with me a long time back. I knew she would do really great, and I'm really happy to see her in a sari today, doing so well. Okay, thank you. So, I mean, I'm really humbled. मेरे को तो पता ही नहीं है अब कृष्ण जैसे लोगों के सामने मैं बोलूँ कैसे. I mean, I think मेरे को चले जाना चाहिए, because you guys are doing so well. I don't know why am I here actually. I'm probably not worth it. Anyways, I'll still tell you about whatever my small brand has done. We are connecting people to Punjab. It was a theme, Punjab-themed brand. We initially started with creating a happy space for people in Elante Mall. The idea was not to make money. The idea was to, make people happy when they came in. We used to make certain T-shirts which would just have some slogans which are not even wearable for that matter. Like people like Krishan who keep proving people wrong. We had also, just for the heck of it, we designed a T-shirt which says "Lagda MBA PTU to kitiya." So I mean, we used to make fun. But then such people keep proving you wrong. Where जहाँ आप खत्म हो जाते हो, ऐसे लोग शुरू हो जाते हैं. So
the idea was just to create some fun slogans. That is how we tried to raise some interest in our brand, in our clothing, or इस तरह की funny कुछ one-liners which did not even make sense, but then they would make people laugh. So the idea was just that. It was really, it was really good to see that people were coming. They were laughing, and we had Punjabi music playing all the time. The vibe was such, people would come, they would start, dancing there. So we really loved it, people were loving the vibe. There are people who are talking about offline and online. So I think offline is also very important. As she said, offline is not dead yet. So I don't think it will die because it has its own advantages. People, as she rightly said, the touch and feel is important. We are also doing online business, but our online business is much smaller than our offline business because we are not good at SEO and digital marketing. We have not been able to get hold of a good agency in Chandigarh at least. We got hold of some agencies in Delhi, it didn't work out anyways, that's a different issue altogether. Here, I'm supposed to share my success instead of my failures actually, but then I think failures would also help. Okay, I'll tell you, probably as Christian pointed out, I think it is very important for startups to know the kind of mistakes we probably do. Like for instance, I think most of us get into bigger volumes because we don't want the cost to become too high. So we work on a very simple thing. We work on smaller lots so that when a lot fails, so many times, we small manufacturers have failures in manufacturing. So what we do is we try to limit our lots to smaller ones so that in case there is a loss, the loss is smaller. And the second thing, probably I've seen a lot of startups die, especially in t-shirt businesses, because they keep very low profit margins, and especially when it is online, there is a lot of cost incurred in returns, in dispatches, couriers, and whatever comes back, your team doesn't really take very good care of it. The packages keep lying. So I think the cost doesn't have to be so low. I've seen t-shirt brands dying because they were selling a t-shirt for 600 rupees, 700 rupees, 800 rupees. It is only Bewakoof which can manage this kind of a Bewakoof. We cannot. Like selling a t-shirt for about 700 and then if it comes back, you end up spending about 200-300 rupees for taking the return and things like that. So I believe you all guys, especially the startups, should try. When you're doing something so innovative like Peter, for instance, and all these things that we guys are doing. So we need to keep our margins reasonably high, and I have to do that all the more because I'm in Elantra Mall. So they charge me a bomb in the name of rentals. These are the two things I wanted to know, and basically Punjab, if we talk, coming back to my brand, now we have franchisees in Canada, Australia and America. When we went to Canada, I wasn't really proud. I didn't feel like a multinational over because people say Canada, Punjab like chota ja pind hai. So then we went to Australia. Then now we are in US, California as well. So we're doing pretty fine that way, and we're happy that we are able to introduce the traditions of Punjab and its culture to these international platforms. As I said, I'm not so good at talking, so in case you have anything to talk to me about, it'll actually make it easier for me. You want to ask me any questions, I'll answer them because I'm not so good at all this, just like Christian probably I'm not. So in case there are any questions, you let me know, otherwise, thank you. All right, thank you so much, Inderji. And I know Inder and Krishan are probably one of the most humble people because their brands do high turnovers, worn by celebrities,
but they would always have very few words to share. So thank you so much. So with this, we'll not keep you waiting further. We'll conclude today's session. So I would just like to call upon Mr. Jitendra Vyas to come up on stage and felicitate our esteemed speakers. So we'll start off with Ms. Kirti Goyal from Peethal. Mr. Inder from the Urban Thaker. So, Ms. Sinja Rana from the Boss Ladies. Ms. Tanvi from Pranisi Fashion. And I think lastly our favorite, Mr. Krishan from The Million Cases. Okay, so Mr. Jitendra, I will just request you to say the closing remarks before we end the session. I would like to thank you all for coming. It's really a pleasure for us. We always believed that there is a huge potential in for a company like Genesis. Any IT company thinks that we should go international, look for international customers. But we always thought there is a huge potential in grassroots of India, in cities like Chandigarh or Punjab or any other cities like Patna or any other. So that's the reason we always wanted to reach out to customers like you, people like you, so that we can share their thoughts, we can understand what they want, and accordingly we can give the solutions to them. So I would not take much of your time. Just want to thank you all for coming, taking your time and coming out here and making this event success for us. Thank you so much.